Thank you for joining this seminar. This is basically an information providing seminar about how we can help class 12 students in their board exam preparation. They have around 1.5 months roughly before their board examination. So how they can be improved with the help of various research that we have done at NIT Raulkela. And the organization that is inviting you to this seminar, as the name is mentioned here, is Clavictor Academy Private Limited. As you can see, our office is at NIT Raulkela, which is a central government institution. So we are a startup that is incubated. And let me give a small brief introduction, because it has been a 4.5 years of our journey at the background. Okay, you might have received many communications from us over the last 1 year, but it took us till last month to finalize how we can help the students and completing the research. Okay, so now we have a full-fledged research product that can help students in excelling in this year of board examination. Okay, so let me go one by one, and for that I would like to give a small information before I move into the details of this presentation. At the end of the seminar and also before, I'll share the app link which has all the research things that I'll mention here that you can utilize from today onwards. Okay, for the benefit of everyone, let me give it immediately. Okay, so when I'm discussing the things, or maybe we can do one thing. Shiksha madam, you share the message of the app link to save the time. Okay, now let's have a small video to show you how or what this organization has done and what is the achievement that we have done in the past. Okay, before coming into the students. I hope if I would have talked it would have taken maybe 4 or 5 minutes. So to save time, I made a video and to show it to you. So as you can see, it has been a long journey of 4.5 years, and you might have also seen our messages maybe a few months back. Okay, so why this was created and how it's different from a different institution. If you look at this slide where we have mentioned everything, the main thing is that we want students' self-study to be done in a single line. The focus of this organization is that once we take the responsibility of a student, wherever the student is, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप जिस भी जहां पे हैं, once हम किसी बच्चे का responsibility लेते हैं इस रिसर्च में, तो हम ensure करते हैं कि बच्चे का सेल्फ स्टडी हो रहा है कि नहीं, and नहीं हो रहा है तो उसको कैसे improve करेंगे, because आप सबको पता है कि पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके सारे फैसिलिटीज बच्चों को देने के बाद भी at the end रिजल्ट डिपेंड करता है कि कैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आपने डेफिनेटली अच्छे कोचिंग, अच्छे स्कूल में डेफिनेटली दिया होगा अपने स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स है डेफिनेटली दे विल बी एंजॉयिंग दिस थिंग्स, लेकिन एट द एंड हमको आउटपुट मिलता है सेल्फ स्टडी से, राइट? अब आपको ये लग रहा होगा विदाउट एनी अदर सपोर्ट सेल्फ स्टडी तो खुद ही किया जाता है। ओके, सो व्हाट एक्स्ट्रा थिंग कैन बी डन? ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन। मैं आपको पहले प्रॉब्लम्स कुछ दिखाऊंगा, लेकिन वो प्रॉब्लम्स के पास जाने से पहले भी ये हमको जानना जरूरी है कि क्या मुझे सेल्फ स्टडी में कोई सपोर्ट चाहिए भी कि नहीं, दैट वी नीड टू नो। और अगर ये हमको क्लैरिटी आए कि हाँ यार मुझे रियली में सेल्फ स्टडी के लिए सपोर्ट चाहिए कि नहीं, अगर ये क्लैरिटी रहेगा तब जाके आप इस सेमिनार में रहने का कोई मतलब है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि बिफोर मूविंग अहेड लेट मी मेंशन, मैं इसका
आंसर चाहूंगा सबसे, लेकिन बिफोर दैट मैं आपको ये बताना चाहूंगा डेफिनेटली, है ना, दोज हु आर ज्वाइंट, कैन यू प्लीज मेंशन आप कौन कौन से स्टेट से हैं? मैं ये बताना चाहता हूं कि हाँ, वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। प्लीज मेंशन योर स्टेट्स, आप जहां जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं चार्ट में काइंडली मेंशन कीजिए आपका स्टेट क्या है, so that I can show you that this research, and today we have invited people from a lot of places. Okay, thank you, thank you. Like, okay, Nabin is from Madhya Pradesh. Okay, thank you. So see, people are from a number of places, right? MP, Delhi, Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim, Odisha. Okay, so I can tell you that this is a very diverse, what you say, audience. Now let me make it personal. अभी आप जो भी लिखेंगे खाली मुझे दिखेगा, है ना? I wanted to show कि हमारे पास यहाँ पे एक ब्रॉडर ऑडियंस है। अभी मुझे आपसे एक चीज चाहिए, जहां पे पेरेंट्स हैं आप अपने बच्चे को जज कीजिए एंड वो लिखिए, मतलब बच्चे को फील करके कि बच्चे क्या कर रहा है, मतलब रियली द स्टूडेंट इज डूइंग परफेक्ट और नॉट। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए कि अभी अभी मतलब कि पिछले 7 दिन को लेते हैं। पिछले 7 दिन में आपका जो सेल्फ स्टडी हुआ, राइट? बच्चे ने डेफिनेटली हर दिन स्कूल गया होगा, कोचिंग गया होगा, अभी एग्जाम भी चल रहे होंगे या फिर एग्जाम होने वाले होंगे, कुछ ना कुछ हुआ होगा। पिछले 7 दिन को इमेजिन कीजिए और अपने आप से ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसको 2 फॉर्म में मैंने लिखा है। क्या आपको लगता है कि आपका जो डेली स्टडी का एफर्ट है वो सफिशिएंट है आपके गोल को अचीव करने के लिए? अगर आपको लगता है कि मैं जैसे पढ़ रहा हूँ परफेक्ट चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है, सब मस्त चल रहा है, इससे मेरा गोल अचीव हो जाएगा, देन यू कैन राइट यस। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इस चार्ट को अभी मैंने पर्सनल कर दिया है, अभी आप कुछ भी लिखेंगे किसी को नहीं दिखेगा, ओनली आई कैन सी, बिकॉज मैं चाहता हूँ ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी का इंफॉर्मेशन किसी को दिखना नहीं चाहिए, राइट? सो आप लिखिए, राइट? अगर आपको लगता है कि नहीं सर, आई फील आई नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट, तब जाके यहाँ पे बैठने का कोई मतलब, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू वेस्ट द टाइम, राइट? बट as for my knowledge, in the last 4.5 years of research, 95% of the cases में बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर, मुझे थोड़ा और इंप्रूव करना है, मुझे लग रहा है कि इतना जैसे चल रहा है ना अभी पढ़ाई, इससे काम नहीं चलेगा, आई नीड टू इंप्रूव, आई नीड टू अपग्रेड। कैसे करना है आई डोंट नो। बच्चे ने 1 साल पहले से मेहनत स्टार्ट किया, राइट? अगर आप कोरोना की बात करेंगे तो मे बी अराउंड, है ना, 8-10 मंथ्स 12 मंथ्स से ऊपर हो चुके हैं, कोरोना जा चुका है, राइट? अभी हम ऑफलाइन में हैं। अभी अगर आप अपने आप को देखेंगे, देन अगले 1 महीने में कोई सडन कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो अभी आपको ये अपने आप से क्लियरली क्वेश्चन करके लिखना है, यस और नो। क्या आपका ओपिनियन कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं या फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं? नहीं हूं तो नो लिखिए, और सेटिस्फाइड हूं मेरे सेल्फ स्टडी से तो यस लिखिए। बट आई नीड दिस रेस्पॉन्स सो दैट मैं आपको अभी जब रियलाइज कराऊंगा कुछ चीजें तो आप अच्छे तरीके से इसको ग्रैप्स कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये फील नहीं होगा कि रियली इसका नीड है भी कि नहीं, तो आपको वो अंदर अच्छे से जाएगा नहीं। ओके, सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर किसी को, सी इफ यू आर गिविंग योर टाइम, इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक व्हेदर इट्स वर्थ और नॉट। आप यहाँ बैठे हैं, ये वर्दी है भी कि नहीं, वो आपको जानना जरूरी है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी जब आपने ऐसा बताया है, नाउ लेट्स मूव इट। अभी आपको जो लोग भी नो लिखे, है ना, आई गॉट मेजोरिटी ऑफ नो, है ना, जिन लोगों ने भी नो लिखा है, अभी क्या इश्यू है वो मैं आपको बताता हूं। मेरे स्क्रीन में एक ही में मैं आपको अगर दिखाऊं, है ना, आई हैव गिवन मेनी रीजंस क्यों नहीं हो पाता, व्हाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड। पहला हो गया कि सर मैं कुछ दिनों बाद भूल जाता, जिस दिन क्लास हुआ उस दिन सारा चीज अच्छे समझ में आ गया सर, लेकिन कुछ एग्जाम तो कल सुबह नहीं है, एग्जाम तो 2-3 महीने के बाद है, तो मैं भूल जाता हूँ, रिविजन ठीक से नहीं पता। कुछ लोगों का क्या होता है, सर अभी पढ़ाई ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है सर, एग्जाम से पहले जो 15-20 चैप्टर 30 चैप्टर का जब रिवीजन होता है ना सर, बिफोर एग्जामिनेशन, जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन, उसमें मुझे दिक्कत आता है। ये कुछ बच्चों का इशू है। कुछ बच्चों को क्या होता है कि एग्जाम कुछ दिन बचे, जैसे कभी 1.5 महीना एग्जाम, अभी उनको टेंशन आना चालू होता है, अरे यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया, क्या करूं कैसे करूं, है ना, बहुत टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा लग रहा है, सो दे गेट वरीड। उससे भी बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ये आपको, आई डोंट नो कि आप आपके जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे, वो आई डोंट नो वेदर दे आर जजिंग द स्टूडेंट्स और नॉट, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली उनको ये अंदर से फील आता है। आप उस बच्चे को फ्रीली कभी पूछोगे तो वो बच्चा बताएगा कि
हर दिन 15-20 मिनट आधा घंटा तो इसी में ही चला जाता माइंड मेकअप करने के लिए, नहीं सब अंडर कंट्रोल है, करना है। इसी को खाली समझने की कॉन्फिडेंस आने के लिए आधा घंटा चला जाता है। नेक्स्ट, कुछ बच्चों का इश्यू क्या होता है, जानते हैं वो आंसर लेकिन एग्जाम हॉल में उनको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि पहले से इसकी तैयारी प्रॉपरली नहीं हुआ। बच्चों को क्या लगा आज टेस्ट हो रहा है, प्री टेस्ट हो रहा है, बोर्ड ना प्री बोर्ड टेस्ट हो रहा है, कोचिंग में टेस्ट हो रहा है, दे जस्ट अटेम्प्टेड दिस। लेकिन अगर जब तक आप खुद घर में बार बार थोड़ा उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको पता है कि डेफिनेटली अगर प्रैक्टिस पहले से नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा किसको कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना था। ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आपको पता होते हुए भी आप कभी कभी लिख नहीं पाते हैं, 5-10 मार्क्स छूट जाता है। एंड इन बोर्ड एग्जामिनेशन अगर आपका 2 मार्क पे मिस होता है तो 0.2 to 0.3% का गैप आएगा, राइट। एंड 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको आप पूछना कि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। 10th जितना भी हो, 12th हर जगह पे चेक किया जाता है। जब भी आप कहीं जॉब इंटरव्यू देने जाएंगे आपको 12th का बोर्ड एग्जाम का परसेंटेज पूछना है। नेक्स्ट रहता है किताब खुला हुआ है, मैं किताब खोल के बैठा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन क्या हो रहा है, अभी ये थॉट आ गया, कल क्या होगा, कोई टेंशन आ गया, कोई प्लानिंग आ गया, कुछ सोचना आ गया, किसी ने कुछ डांट दिया। ये जो थॉट प्रोसेस आता है इसमें क्या होता है, बच्चे किताब खोल के बैठे रहते हैं लेकिन दिमाग कुछ अलग चल रहा होता है। ये अनमाइंडफुलनेस होता है, राइट। नेक्स्ट हो गया, ये एक बड़ा मेजर इशू है। मैं बोलूंगा कि जितना मैंने 4.5 साल में देखा है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। जो 6th नंबर प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे आपको बताया है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज। ये क्या होता है कि सुबह उठ के या रात को सोने से पहले हर बच्चा अपना एक प्लान करता है कि मुझे कल क्या करना है। हो सकता है कुछ बच्चे लिख के करते हैं और कुछ बच्चे प्लान दिमाग में करते हैं। लेकिन जब वो दिन खत्म हो जाता है एंड अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, दे फाइंड कि आज मैंने 50, 60, 70% ही कंप्लीट किया अपने टारगेट। और ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर ये करता है कि इसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होता है। उनको लगता है कि अरे यार मेरा हर दिन का टारगेट फुलफिल नहीं हुआ है, और वो किसी को बता भी नहीं पाते हैं क्योंकि टारगेट तो उन्होंने किसी को डिक्लेयर नहीं किया था, अपने आप से किया था, राइट। एंड इसके वजह से क्या होता है, बता रहा एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। वो लगता है ठीक है यार 70-80% आएगा उतना ठीक है, लेकिन उस बच्चे में पोटेंशियल था ज्यादा करने का। पेरेंट्स को भी क्या लगता है, हाँ ठीक है बच्चा फर्स्ट क्लास तो हो ही जाएगा, बट दे डोंट जज कि इस बच्चे में 90-95 का परसेंट का पोटेंशियल था, लेकिन वो बच्चा कर किया नहीं और वो सेटल हो गया कम परसेंटेज में, क्योंकि जितना वो हर दिन का प्लान कर रहा है वो कर ही नहीं पा रहा है। तो बच्चा बोलेगा भाई शायद मेरा यही लेवल है, इतने में खुश रहना चाहिए, मैंने बहुत ट्राई किया, 12 साल ट्राई किया, लेकिन कभी मैंने अपना टारगेट फुलफिल नहीं किया। अगर आप पेरेंट हैं तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जब भी कोई टारगेट लेता है, मान लीजिए बोला 95% उसको मिला 85%, उसने बोला 90% उसको बोला 83%, अगर आपको लगता है कि हर बार बच्चा 2, 4, 5, 10% में पीछे रह जाता है, तो मैं गारंटी देता हूं ये 6 में से कोई ना कोई प्रॉब्लम पक्का होगा बच्चे। एंड अगर थोड़ा और डीप में जाऊं, ये 7वां जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये क्रिएट होता है अबोव 6 की वजह से, पहले 6 की वजह से 7 वाला होता है। जब आपके सारे चीजें सिस्टमेटिक नहीं हो पाता, रिजल्ट क्या होता है कि कुछ चीजें पेंडिंग रह जाता है। तो आप क्या करते हो, एग्जाम दिल जाने से पहले 20 चैप्टर का एग्जाम होने वाला है, 13 चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, 4 चैप्टर को थोड़ा सा ओवरलुक किया और 3 चैप्टर के लिए टाइम ही नहीं मिला रिवीजन। ये जो बैकलॉग होता है, द रीजन बिकॉज इज द अबोव 6 रीजंस। ओके, एंड आई कंसीडर दिस एज आल्सो अनदर रीजन। तो अगर आपको लगता है इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ स्टडी एफर्ट, देन आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आपको मिलेगा ये 7 रीजन में से 1, 2, 3, 4, 5 कुछ ना कुछ का हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ इश्यूज भी हो सकते है ना। नाउ किसी के अंदर भी इसमें से एक भी अगर है इशू, देन आई फील आपका 100% पोटेंशियल आप यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब सॉल्व होगा तो आपका पोटेंशियल और आपका परसेंटेज, आपका स्कोर बढ़ सकता है। लेकिन इशू क्या है, जितने भी प्रॉब्लम मैंने लिखे हैं, मैं गारंटी देके बोलता हूं कभी इस इशू को कोई भी पेरेंट, कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते हैं।
टीचर से डिस्कस करते हैं। उनको लगता है कि इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, ये उनको बिलीव होता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ सॉल्यूशन तो क्या बता के क्या फायदा। किससे डिस्कस करेंगे? दोस्त से, जो कि खुद ही सेम प्रॉब्लम होगा। राइट नाउ मैंने आपको आज यहाँ पे बुलाया है बिकॉज 4.5 साल में हमने उसके लिए कुछ रिसर्च किया एंड हमने फाइंड आउट किया कि हर प्रॉब्लम के लिए प्रॉपर सॉल्यूशंस अवेलेबल है, बट फॉर दैट वो बच्चे से अकेले नहीं होता है, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंचा नहीं है अभी तक, उस माइंडसेट तक, उस ट्रेनिंग लेवल तक वो पहुंचा नहीं है। राइट मैं एक एक करके अगर शॉर्ट में बताऊं तो जैसे कि एक एक करके बताता हूं। अगर आपको मेमोरी रिलेटेड जब इशू आता है, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, उसके लिए बहुत सारे मेमोरी टेक्निक है, विजुअलाइजेशन टेक्निक है ना, वो उसके रिसर्च हमने किया हुआ है, सारे ट्रेनिंग मटेरियल अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। मैं आपको ये एश्योर करता हूं जो लोग भी आए हो, जितने इश्यूज मैंने यहाँ पे बताए सारे के रिसर्च हमने करके उसके मटेरियल बनाए कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। और आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी कर दिया है। मैं आपको एग्जांपल के साथ अभी एक एक करके बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स। नेक्स्ट आता है माइंड मैप। जिन बच्चों को रिवीजन में प्रॉब्लम होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम सेविंग टूल। जब बच्चा रिवीजन करता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टाइम सेविंग टूल है ना। यस यस जयश्री, जयश्री नो इश्यूज जयश्री, है ना। आई विल डिस्कस, है ना। नाउ जब रिवीजन करते हैं, मैंने बोला था ना प्रॉब्लम नंबर 2 इज रिलेटेड टू रिवीजन। रिवीजन का इशू क्या होता है कि हम स्टार्टिंग से लेकर रिवीजन करते हैं। चैप्टर 1 को हमने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी पढ़ा था, सेकंड टेस्ट में भी पढ़ा था, हाफ ईयरली में भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी तुम जब ईयरली एग्जाम में रिवीजन स्टार्ट करोगे, कहां से शुरू करोगे? चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 2 3 4 को बार बार रिवीजन का चांस मिलता है, लेकिन चैप्टर 13 को आपका नंबर आता ही नहीं, बहुत लास्ट में। और उसमें भी स्टार्टिंग से आप पढ़ते हो हर चैप्टर के, तो जो डेफिनेशन, जो चीज आपको पता है उसको फिर एक बार रीडिंग मारोगे, लेकिन वो पहले ये नहीं पता चल पाता कि किसमें आपका वीकनेस है। तो ये जो टूल है, आपको लगेगा छोटा सा टूल है, लेकिन इसमें इतना पावर है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, इस एक चीज को अगर आप सेल्फ स्टडी में इंप्लीमेंट कर दोगे तो आपके मिनिमम 3 से 4% बढ़ सकते हैं। कैसे? मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। आप जब रिवीजन करने बैठते हो, है ना, तो पहला चीज आपको लॉजिक लगाओ, क्या करना चाहिए कि मुझे क्या नहीं आता, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और पहले उसको पढ़ना चाहिए। क्या आप करते हो? उसको नहीं। क्यों? बोलते हो कि सर कैसे पता चलेगा? तो ये जो टूल है ये आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने की, रिवीजन करने से पहले इसका मतलब क्या है। ये जो रिलेशन फंक्शन एक मैथमेटिक्स का चैप्टर एग्जांपल के लिए मैंने दिया है, ऐसे जितने सब्जेक्ट्स हैं साइंस एंड कॉमर्स, है ना, के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने चैप्टर्स हैं, जो भी सब्जेक्ट है, हमने सारे सब्जेक्ट के ऐसे माइंड मैप बनाए हर चैप्टर के। ये जैसे एक रिलेशन फंक्शन एक चैप्टर है, इसमें कितने हेडिंग है, कितने सब हेडिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्या इंपोर्टेंट थिंग है, सारी चीज का हमने माइंड मैप बना दिया। आपको क्या करना है कि इसको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है और रिवीजन करने से पहले इसको हाथ में पकड़ना है। एंड जब रिवीजन कर रहे हो, इसमें आपको मार्क करना है कि क्या आपको याद आ रहा है बिना रिवीजन किए और क्या याद नहीं आ रहा है। द थिंग विच यू क्रॉस, आज रात को या कल सुबह को आप जो क्रॉस मारोगे, एग्जाम तो 1 महीने के बाद है, 1.5 महीने के बाद है, ये आपको याद कराएगा उस टाइम पे रिवीजन करते वक्त कि ये मेरा वीक पार्ट था। तो रिवीजन जब करोगे तो क्या करोगे, पहले वो पार्ट को पहले जाकर रिवीजन करोगे, क्योंकि सुबह उठने के बाद 5-6 घंटा माइंड बहुत फ्रेश होता है, उस टाइम पे जो आप पढ़ते हो बहुत अच्छे से याद रहता है। तो अगर ये जो वीक पार्ट सब आइडेंटिफाई कर लिया जाए माइंड मैप के जरिए और रिवीजन के टाइम पे पहले उसको किया जाए, देन इसका बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट है। राइट, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में जो भूलते हो ना वो नहीं होगा, क्योंकि वीक पार्ट को आपने बार बार रिवीजन किया, 3 दिन पहले रिवीजन किया, 2 दिन पहले रिवीजन किया और हर दिन उसका नंबर आया, क्योंकि अभी हमने जानबूझ के जो हमारा वीक पॉइंट था उसी को ही हमने फोकस किया। राइट नाउ कुछ बच्चों को जो मैंने बताया था ना, स्पीड रीडिंग एंड राइटिंग के रिलेटेड इश्यूज रहता है, उसके लिए देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज। वैसे तो आपको भी पता है कि व्हेन यू राइट यू कैन प्रैक्टिस, बट उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस है कि किस चीज को कितना करना चाहिए। अगर कोई टीचर आपको ये बता दे देन आपका टाइम सेव हो सकता है। राइट नेक्स्ट अगर मैं बताऊं कि जिन लोगों को ज्यादा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिससे उसको सॉल्व किया जा सकता है। जिनको होता है हम पर्सनली सिखाते हैं, क्योंकि ये किसी को बताना नहीं चाहिए कि जिसको मतलब क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अ पब्लिक थिंग, है ना। जिनको होता है दे फील शाय, तो जिनको होता है
है ना, वी ट्रेन देम पर्सनली, है ना। नेक्स्ट, जिन बच्चों को लगता है कि मैं ऑन माइंड हो रहा हूँ, उनके लिए भी हमारे पास कुछ चीजें है, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन मेथड, है ना, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स, राइट, जो हम सिखाते हैं बच्चों को। अभी टाइम कम है तो मैं स्पीड में जाऊंगा। नेक्स्ट हो गया जो मैंने मेजर इशू बताया था, है ना, 6th रूल है कि बच्चे डेली का जो प्लान बनाते हैं, ये उनका की है, सक्सेस का की है। दिक्कत क्या होता है कि बच्चे कभी एनालाइज नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे एनालाइज करना चाहिए। मान के चलिए यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहिए, ये एक आइडियल है, मुझे पता है बच्चे इसको करते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं, मेरा जिम्मेदारी बनता है मैं आपको बताऊं कि ये हम बच्चों के लिए खुद कर देते हैं। जब हम किसी बच्चे का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बच्चा कभी ऐसा एनालिसिस नहीं करेगा, लेकिन हम करते हैं बच्चे, वी टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम ये नोट डाउन करते हैं कि आज बच्चे का क्या क्या एक्टिविटी हुआ, उसके लिए हम उनको 10 मिनट डेली इंटरेक्शन करते हैं, ताकि हम उस 10 मिनट में उनसे सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। वो बताएंगे कि आज उन्होंने कौन से टाइम पे क्लास किया, कौन से टाइम पे कोचिंग गए, कौन से टाइम पे आने में टाइम वेस्ट हो गया, कौन से टाइम पे उन्होंने सेल्फ स्टडी किया, कौन से टाइम पे यूट्यूब देखा, कौन से टाइम पे क्या किया। इफ दे विश, ये ऑप्शनल है, कोई फोर्सफुल नहीं है, लेकिन हम बच्चे जनरली हमको बोलते हैं कि हमको इसमें हेल्प करो। नेक्स्ट हो गया कि कल वो क्या करेंगे, आज की सिचुएशन को देखते हुए, कल क्या असाइनमेंट है, कल क्या एग्जाम है, एग्जाम को कितने दिन बचे, उसके हिसाब से कल का प्लानिंग कैसे होना चाहिए, वो हम हेल्प करते हैं बनाने, मिल के बनाते हैं। एक टीचर पर्सनली आपसे कनेक्ट होगा और टीचर आपसे इंटरेक्शन कर करके कल का शेड्यूल फिक्स किया जाए। नेक्स्ट थिंग इज, फिर एनालिसिस होगा कि आज क्या नहीं हो पाया, ये कोई नहीं करता। हमने आज समझ लिया, तो सोचिए कल का प्लान अगर हम आज से बना लेते हैं आपसे मिलके, तो जब कल खत्म हो जाएगा, जैसे कि हमने पिछले कल आज के लिए प्लान बनाया होगा, राइट, तो आज जब दिन खत्म हो गया तो हम आपसे ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आए। आपने सोचा था कि कोई चीज 3 घंटे में खत्म हो जाएगा, वो आपको 5 घंटा लगे, आप क्या कर सकते हैं? मतलब कोई चैप्टर था, आपने टारगेट किया था कि मैं 3 घंटे में इसको खत्म कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन वो 5 घंटा लग गया, 6 घंटा लग गया, व्हाट विल डू? आपको टेंशन आना चालू हो जाएगा। अभी वो जो 3 घंटा एक्स्ट्रा लगा, हाउ टू कॉम्पेंसेट? तो हम ये एनालिसिस करें क्या नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया और उसको क्या किया जाए, ताकि आगे वो चीज रिपीट ना हो, राइट। ये हम करते हैं, है ना। इट टेक्स अराउंड 10 मिनट्स ए डे, है ना। नेक्स्ट, बच्चे क्या करते हैं, किसी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किसी चीज को कम प्रायोरिटी देते हैं। तो जो व्हील ऑफ लाइफ बैलेंस क्रिएट करना है। कोई सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो बहुत पढ़ेंगे, कोई सब्जेक्ट को इग्नोर ही कर देंगे। इसलिए आपने देखा होगा बच्चों का मार्क्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा, एक सब्जेक्ट में बहुत, है ना। बोलते हैं अरे वो केमिस्ट्री दिक्कत दे रहा है, किसी को मैथ दिक्कत दे रहा है, किसी को फिजिक्स दिक्कत दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस नहीं क्रिएट करते। तो जो बैलेंस क्यों नहीं क्रिएट करते, क्योंकि उन्होंने किसी को वो बताया ही नहीं कि वो टाइम को कैसे स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम पर्सनल मेंटरिंग करते हैं तो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हट जाता है, आइडेंटिफाई होके क्लियर हो जाता है, क्योंकि हम उसका चार्ज लेते हैं, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद आता है पर्सनल मेंटरिंग एंड गाइडेंस। इसको समझाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि पर्सनल मेंटरिंग एंड गाइडेंस की क्या जरूरत है। आप बोलोगे सर मैंने तो 12 साल, अभी मेरा 12th एग्जाम होने वाला है 1.5 महीने के बाद, 12 साल तो आई डोंट नो कि मुझे कोई पर्सनल मेंटरिंग एंड गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ा। तो आई होप इतना तक आपको ये पता चल गया होगा कि पर्सनल मेंटरिंग में क्या होगा। ऐसे हम एनालिसिस करके आपके टाइम को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत आया होगा तो उसको कैसे सुधारा जाएगा, ये हम आपको हेल्प करेंगे। पर्सनल मेंटरिंग, राइट। अभी आता है पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस क्या होता है, मैं उसको एक स्लाइड के थ्रू समझाना चाहूंगा, है ना। जब भी आप पढ़ते हो या क्लास अटेंड करते हो या आप नोट्स लिखते हो या तो उसके रिलेटेड कोई ऑडियो विजुअल देखते हो, तो आप उसकी कुछ पार्ट को याद रखते हो। लेकिन क्या है कि हर टाइप ऑफ जो व्हाट यू सी हर टाइप ऑफ लर्निंग मेथड का एक एफिशिएंसी होता है। एक बार खाली लेक्चर सुनोगे तो जितना याद रहेगा, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो उसके 10 गुना ज्यादा याद रहेगा, उससे भी ज्यादा याद रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेक्चर मतलब क्लास अटेंड करना, रीडिंग मतलब रीडिंग करना, है ना। ऑडियो विजुअल एंड डेमोन्स्ट्रेशन मतलब आप कोई पिक्चर देखिए, मतलब ऑडियो विजुअल मतलब वीडियोस देखिए। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कोई एनिमेशन देखिए, है ना। डिस्कशन ग्रुप, प्रैक्टिस बाय डूइंग मतलब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो। दीज आर ऑल द डिफरेंट मेथड्स। अब इश्यू क्या आता है, बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको इसको थोड़ा एनोटेट करके दिखाना चाहूंगा। पहला चीज बच्चे करते हैं क्लास अटेंड, वो होता है, कुछ चीजें वहां भी याद रहता है। घर में आके पक्का रीडिंग मारते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं याद रहता है।
और उनका लास्ट मेथड होता है ये वाला, प्रैक्टिस बाय डूइंग। और बच्चे पहले दोनों को तो बहुत डेडिकेटेडली करते हैं क्योंकि इसमें इतना ज्यादा एनर्जी खर्चा नहीं होता, लेकिन ये वाले को वो बहुत कंजूसी के साथ करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। आप देखिए, आप एक बार रीडिंग मारोगे और क्लास अटेंड करोगे तो कंबाइनली आपको 15% याद रहेगा एक बार में, और एक बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको 75% याद रहेगा एक बार। लेकिन आप अगर जेन्युइनली अपने बच्चे का कॉपी को चेक करोगे तो बच्चा हर चीज को लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा अगर वो किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है या कोचिंग जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसको 4-6 घंटा तो उधर ही चला जाता है, तो फिर कोचिंग जाएगा तो उतना लिखने के लिए उसके पास टाइम कहाँ पे। तो इश्यू ये होता है, उसको लगता है कि शॉर्टकट क्या है कि भाई रीडिंग बार बार कर दूंगा, 4-5 बार रीडिंग कर दूंगा, आज एक बार पढ़ लिया याद रह गया, फिर 7 दिन के बाद और एक बार रिवाइज कर लूंगा, फिर रिवाइज कर लूंगा, हो जाएगा। वो इसको बाईपास करता है क्योंकि मिनिमम 4 से 5 गुना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए प्रैक्टिस। अब जो होना था वो हो चुका है। अभी बोर्ड एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है, जो हमने बच्चों के लिए सोचा है ना, मैं आपको पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेशन के साथ बताऊं कितना घंटे आपको चाहिए पढ़ने के, उतना तक मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा जिस रिसर्च में जो हमने पाया है। हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को ये जो 3 चीजें, तो वैसे भी ये दोनों चीजें तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, आपके उनके पास नोट्स है उसको रीडिंग कर रहे हैं, ये बच्चे थोड़ा ज्यादा नहीं करते। इनके लिए हमने क्या किया, 3 मिनट 5 मिनट का छोटा छोटा वीडियो क्लिप बनाया है। तो हम बच्चे को सेल्फ स्टडी करने से पहले क्या बोलते हैं कि आज आपका ये चैप्टर आप रिवीजन करने वाले हो, वो रिवीजन करने के लिए 10-12 घंटा लग सकता है या फिर 3-4 दिन में वो खत्म होगा, थोड़ा 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 करके, है ना, आपने जो टाइम स्लॉट किया होगा उसमें खत्म होगा। हम बोलते हैं कि वो चैप्टर को रिवीजन करने से पहले तुमको जो याद नहीं आ रहा था उसके लिए पहले उसका जो हमारा एनिमेशन है हमने जो बनाया है उसके लिए वो 3 से 5 मिनट पहले उसको देख लो, फिर रिवीजन स्टार्ट करो। तो क्या होगा, तुमको पहले रिकॉल हो जाएगा कि वहां पे क्या क्या था, वो टीचर के ये चीजें सब एनिमेशन में, है ना, कार्टून के थ्रू बनाया गया रहता है, इमेजेस के थ्रू बनाया रहता है। फिर आप जब पढ़ोगे तो आपको टाइम बचेगा क्योंकि आप रिकॉल कर लोगे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, आपने सेल्फ स्टडी कर लिया, नेक्स्ट होता है डिस्कशन। डिस्कशन अगर करोगे तो 5 बार पढ़ोगे जितना याद रहेगा, एक बार डिस्कशन करोगे याद है। लेकिन आपके साथ कौन डिस्कशन कर रहा है, दोस्त बोलेगा अरे रुक मुझे भी पढ़ना है, सीनियर बोलेगा मेरा काम है, जूनियर तुम्हारे साथ बैठेगा नहीं, बोलेगा तुम्हारा बात सुनने के मुझे क्या फायदा। बट इफ यू डू द डिस्कशन, 5 गुना एफिशिएंट है सेल्फ स्टडी के लिए, रीडिंग के बराबर के, राइट। अभी इश्यू क्या है कि हमको वो माहौल नहीं मिलता। तो हमने जब रिसर्च में पाया कि ये एक ऐसा चीज है जो बच्चों को बहुत इंप्रूव कर सकता है, लेकिन बच्चों को माहौल नहीं मिल पा रहा है ऐसा, तो हमने वो क्रिएट किया। जो पर्सनल गाइडेंस सिस्टम है, हम क्या करते हैं, इसमें आपको एक टीचर के साथ पर्सनली कनेक्ट करेंगे, वो भी आपके कन्वीनियंट टाइम पे। आप बोलोगे कि मैं 7 बजे फ्री रहता हूँ, मैं 9 बजे फ्री रहता हूँ, मैं 10 बजे फ्री रहता हूँ, मैं 11 बजे फ्री रहता हूँ। आप जितना बजे फ्री रहोगे उस टाइम पे हम बच्चे को आपसे कनेक्ट करेंगे, राइट। सॉरी, टीचर को आपसे कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा लाइव दिखाता हूँ। जस्ट ए मिनट, मैं आपको इसको स्क्रीन शेयर को स्टॉप करता हूँ, है ना, मैं आपको पूरा फुल स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, है ना, जो लाइव चल रहा होगा, है ना, हम कैसे बच्चों को गाइड करते हैं। पर्सनल गाइड, सॉरी जस्ट ए मिनट, ओके जस्ट ए मिनट, पर्सनल गाइडेंस कैसे होता है, मैं थोड़ा अपना व्हाट्सएप चेक करना चाहूंगा कि आपको पता चले कि कैसे चल रहा है, राइट। लेट मी गो, मैं कुछ नाम यहाँ पे टाइप करूंगा और आपको दिखाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल दीप्ता, है ना, ये एक बच्चे का नाम है। आप अगर इसको देखेंगे, हमने उसके लिए हर चीज के लिए हमने एक मिशन बनाया है ना। इफ यू सी, इस बच्चे के लिए एक पर्सनल ग्रुप है, ये बच्चे के लिए। आई होप मेरा स्क्रीन आपको विजिबल हो रहा होगा। कोई यस लिख सकते हैं कि अगर मेरा स्क्रीन आपको विजिबल हो रहा है, क्योंकि मैंने पीपीटी को हटा के अभी मैंने व्हाट्सएप खोला है, ये आपको दिखाने के लिए कि कैसे हम बच्चों को गाइड करते हैं। मेंटरिंग तो मैंने आपको बता दिया, गाइड की बात कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू थैंक यू। अभी देखिए, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, जयश्री आपको नहीं दिख रहा है, आपने नो लिखा है जयश्री, अंशिका ने यस बोला है, थैंक यू अंशिका। अभी क्या है, आपको क्यों दिक्कत आता है, क्योंकि आपको जब प्रॉब्लम होता है आपके पास कोई नहीं है, जब आपको समझ में नहीं आया उस टाइम पे आपका टीचर आपके पास नहीं था। हम क्या करते हैं, ये देखिए उस बच्चे का शेड्यूल, ये बच्चा सेल्फ स्टडी हमारे साथ 3 घंटे मिलके करता है, मतलब उसका 3 घंटा का जो सेल्फ स्टडी टाइम है, वो टाइम भी अगर आप देखोगे, अभी तो यहाँ छोटा छोटा दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे देखोगे, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम इट गोज अप टू 11 PM एट नाइट। तो वो 3 घंटा जो उसका पढ़ाई का टाइम है वो हमारे साथ मिलकर पढ़ेगा, वहां पे एक टीचर लाइव रहता है उसके लिए, राइट। उसको किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है,
वो बच्चे के ग्रुप में उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी एलोंग विद मैं और मेरे और भी टीम मेंबर्स सब वहां पे एडेड है। यहाँ पे इफ यू सी 25 पार्टिसिपेंट्स आर देयर ओनली फॉर वन स्टूडेंट। उसको उसमें उसका नंबर है, उसके पिताजी का नंबर है, है ना, उसके फैमिली का दूसरा नंबर है ना। मेरे कमिटी के जो 15 लोग कोर मेंबर हैं और बाकी 10 टीचर है, 7-8 टीचर है सर, 7-8 टीचर है। अभी उस बच्चे का एक पर्सनल लिंक है। बच्चा किसी को रिक्वेस्ट नहीं करेगा सर मुझे समझा दीजिए, उसके नाम का एक लिंक है। उसको कुछ भी डाउट होगा वो लिंक में बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहा है, या फिर लिंक अवेलेबल है, एक मैसेज करेगा फिजिक्स टीचर में, फिजिक्स टीचर को टैग करेगा और फिजिक्स में हेल्प चाहिए तो टैग करेगा, टीचर उसमें ज्वाइन करेगा और उसको सॉल्व करेगा। तो ऐसा नहीं कि आज डाउट हुआ मैं 3 दिन के बाद क्लियर करूंगा, इंस्टेंट उसको सॉल्व करता है। हाँ, उसके लिए हमने एक स्लॉट बनाया है ना, उस टाइम पे वो होता है। अगर दूसरे टाइम पे चाहिए तो उसको पहले से बताना पड़ता है कि मैं इस टाइम पे कल फिजिक्स पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, कैन यू प्लीज हेल्प मी एट दैट टाइम। तो वो पहले से बुक करके रख लेता है। यहाँ पे टीचर्स को हम बुक करके रखते हैं, राइट। इसमें इफ यू सी, मैं और एक बच्चे का दिखाता हूँ, है ना, ऐसे ऐसे हंड्रेड्स ऑफ, यहाँ पे जैसे रोल नंबर आप देख रहे हैं ना, इट्स 9। मैं और एक बच्चे का दिखाता हूँ ना, हु इज सिंस लॉन्ग टाइम, है ना, जो उसने हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया था उनके पेरेंट्स ने। निकल मैं एक एक करके से बहुत बच्चों का आपको दिखा सकता है ना, क्योंकि ये इससे हमने स्टार्ट किया था, आपके बैच का जो चीजें हमने उससे ही स्टार्ट किया था, तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जब भी कुछ पढ़ाया जाएगा, जब भी कुछ डिस्कशन होगा, डिस्कशन होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, है ना, देखिए जैसे फिजिक्स मैडम ने, है ना, ये डिस्कशन करने के बाद ये दिया है कि वो क्या क्या प्रैक्टिस करेगा, कैसे करेगा, है ना, कोई हॉलीडे होगा, वो सब 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 आपको हर हर गाइडेंस के बाद आप उसको रेट करते हो कि आपको कैसा लगा आज का गाइडेंस, टीचर कैसा लगा। अगर आपको लगा कि मुझे और एक बेटर टीचर चाहिए तो वी कैन प्रोवाइड यू बेटर टीचर, राइट। ऐसे होता है। नाउ व्हाट आई वांट टू मेंशन हियर, क्यों मैं आपको ये सब दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपके फिंगर टिप पे टीचर अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जहां पे रुको वहां पे आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो कहीं पे भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आज के टेक्निकल जमाने में ये कोई बड़ी बात नहीं। बात बड़ी ये है कि आप जब पढ़ाई खत्म कर दिए उसके बाद रिवीजन कैसे हुआ आपका, किसने चेक किया कि आज आपने जो पढ़ा कल सुबह आपको याद है और 100% करेक्टली याद है, राइट। हम क्या करते हैं, देखिए इफ यू सी दिस एनी मैसेज, है ना, क्या लिखा है, डियर निकम जैन फिजिक्स गाइडेंस, ये जो 7 PM को गाइडेंस सेशन होता है, इसमें टीचर ने लिंक उसी का ही लिंक, इफ यू सी दिस लिंक, दिस इज द स्टूडेंट्स ओन लिंक, ये बच्चे का खुद का लिंक है, उसी को ही उन्होंने दिया कि अब हम मीट करेंगे, क्योंकि तुमने मुझे बुक किया है इस टाइम पे, विल मीट। हमने ऑलरेडी पहले से प्लान बना लिया कि बच्चे का कौन से टाइम पे क्या गाइडेंस होगा, राइट। नाउ इफ यू सी हियर, अगर बच्चे ने पढ़ाई की करने के बाद अगर उसको वो याद नहीं आया तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइडेंस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फॉर ए क्लास, पहले वो आपको जानना जरूरी है ना। मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ, है ना, रिपोर्ट, आई वांट टू शो यू वीकली रिपोर्ट आल्सो। हम जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जब लेते हैं, क्योंकि हमको पता होना चाहिए, राइट, वीक बाय वीक हमारे लिए हर बच्चा एक मिशन है, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड चीजें हैं। मैं आपको एक वीकली रिपोर्ट दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस रिपोर्ट, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। जस्ट a minute, if you see this report, है ना, तो ये रिपोर्ट है ना, कौन उनके मेंटर हैं, कौन कौन से ट्यूटर कौन है ना, उन्होंने कौन से है ना 5 दिसंबर को उन्होंने क्या पढ़ाई किया था, सेल्फ स्टडी हुआ कि नहीं हुआ, ये किसने जज किया, टीचर ने, गाइडेंस सेशन में। क्या रिवीजन का प्लान किया गया था, ये प्लान किया गया था, तो पढ़ाई ये हुआ था, रिवीजन ये होने वाला है ना। एंड इस वीक के सेल्फ स्टडी का रिमार्क क्या है, क्वालिटी ऑफ द सेल्फ स्टडी, वो टीचर रेट करेंगे आपके क्वालिटी ऑफ द सेल्फ स्टडी को, कि खाली आपने नोट बना के वो सोच लिया कि मैंने सारे पढ़ लिए, नहीं, ऐसे नहीं होगा, राइट। अगले वीक को क्या होना है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। Why I showed this because I wanted to make you feel कि अगर आपके साथ ऐसा एक सिस्टम जुड़ता है ना, तो यू फील एम्पावर्ड कि आप कुछ भी कहीं पे भी रुकोगे नहीं। अब उस गाइडेंस में और इंपॉर्टेंस क्या होता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ थोड़ा सा, है ना। सो लेट मी टेल यू ना, यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा चलो बाद में बात करते हैं, पहले मैं इसको आप क्लियर कराता हूँ। इमेजिन करो, क्लास आप तो ऑलरेडी कर रहे हो, तुम बोलोगे कि मुझे और क्या जरूरत है सर, जरूरत इसीलिए है कि क्लास में आप सुनते हो टीचर पढ़ाते, गाइडेंस में उल्टा होता है, आप टीचिंग अदर्स करते हो, ये वाला और ये वाला काम गाइडेंस में होता है। क्या होता है इसका मतलब है कि आप
यहाँ पे बोलोगे और टीचर सुनेगा, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी किया है ना, यू हैव डन द सेल्फ स्टडी, है ना। तो अभी टीचर का काम क्या है वहां पे, ये चेक करना व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ द सेल्फ स्टडी। कोई आधे घंटे का करता है, कोई 1 घंटे का करता है, कोई बच्चा 3-3 घंटे का भी करता है बुकिंग। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब कॉलेज नहीं जाते, उनका कुछ डोमिन स्कूल होता है, तो उनको दिन भर पढ़ने के लिए टाइम होता है। वो बोलते हैं सर मेरा हर दिन 3-3 घंटे का बुकिंग रखिए एंड मैं हर दिन हर चीज चेक करवाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यू विल बी गिवन द चांस कि आप उसको बोलोगे टीचर को कि सर मैंने ये पढ़ा था, उसमें ऐसा फॉर्मूला था, उसमें ऐसा था। टीचर को लगे अच्छा बेटा और एक ये करके दिखाओ, तो वो करके दिखाओ। तो जहां पे आप रुक जाते हो वहां पे टीचर डिस्कशन करना स्टार्ट कर। टीचर फिर आपको बताता है कोई बात नहीं, तुमने इतना कर लिया है लेकिन ये तुमसे मिस हो गया, इसको मिस नहीं करना है। तो आपको पता चलता है हाथों हाथ कि अरे एग्जाम होने से पहले क्या ये मेरा मिस हो रहा था। और वो टीचर वहां पे नहीं छोड़ता, क्योंकि वो टीचर का एक ही काम है, आप अकेले उसके पास आए हो, राइट, नो वन एल्स इज देयर। वो आपके लिए एक रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट बना रहे हैं कि बच्चे ने कितना कंप्लीट किया है, कहाँ पे वो वीक है, कैसे उसको सुधारना है। वो आपका काम नहीं है अभी, नहीं, वो टीचर का काम है अभी। वो इंश्योर करेगा कि फिजिक्स में क्यों कम हो रहा है, राइट, दैट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। एंड अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, देयर आर वेरी गुड स्टूडेंट्स है ना, जो 90-95% बच्चे हैं हमारे पास रहते हैं, तो वो तो ऑलरेडी अच्छे पढ़ के आते हैं, उनको याद भी रहता है, सारी चीज समझा देते हैं। तो फिर उसमें गाइडेंस की क्या जरूरत है, उसमें गाइडेंस की जरूरत इसलिए पड़ता है ताकि आपका जो ट्रिकी क्वेश्चन है, सारा एक्सरसाइज अगर आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, टीचर ने देख लिया आपका थ्योरी पूरा क्लियर है, सॉल्व आपको अच्छे कर पा रहे हो, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर आपका पूरा अच्छे से कर पा रहे हो। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट माइलस्टोन, कि जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया, वहां पे वो आपको हेल्प करता है, राइट। एंड दिस इज द थिंग जहां पे आपका टाइम बहुत सेव होता है, बहुत, क्योंकि आपके सारे मिस्टेक्स टीचर फाइंड आउट करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अगली बार जब गाइडेंस होगा तो आपसे क्या एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने हमारा काम वही है, हम कोई कोचिंग सेंटर नहीं कि हम आपको पढ़ाएंगे, राइट। तो आपका बहुत टाइम सेव होता है। अब मैंने यहाँ पे एक स्टैटिस्टिकल डाटा दिया है ना, इट्स एन अप्रोक्सीमेट, मैं ऐसा नहीं क्लेम करता कि इट्स एन एग्जैक्ट, है ना। अगर आप जब रिवीजन करोगे ना, नाउ यू विल डू रिवीजन, मुझे पता है सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड यू विल डू रिवीजन, राइट। नाउ यू सी, ये हमने एक अप्रोक्सीमेट निकाला है कि अगर आप बिना पर्सनल मेंटरिंग एंड गाइडेंस के इसको अगर करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 160 से थे जो हमारे ट्रैक में रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उनसे हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली हमने उनका बचाया है। Hello, sir. Your voice is not audible to the audience. Hello, sir. Your voice is not audible. Hello, everyone. Good evening to all. So, on behalf of Suraj sir, let me uh, continue this session with that slide that where sir has uh, got stuck. So, basically, just let me share my screen so that we will be able to continue the discussion ahead till the time Suraj sir will join us again.
So I hope my screen is visible to everyone. मैम स्क्रीन आपकी नहीं आ रही। Okay. Is it visible now? No, ma'am. Please write. Not yet. यस मैम, यस मैम। It's visible. Okay. So let's continue the discussion. So as sir was mentioning, like हमारा जो लास्ट फ्यू इयर्स में जो रिसर्च हुए हैं, तो बेसिकली एक उसका लाइक स्टैटिस्टिक है जहाँ पे साइंस आर्ट्स कॉमर्स के जो लाइक कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, यहाँ पे इंग्लिश भी इंक्लूडेड है, बट यहाँ पे हमने इंग्लिश को नहीं रखा हुआ है, जो कोर सब्जेक्ट्स में जिसमें ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, सो उन सब्जेक्ट्स का हमने स्टैटिस्टिक रखा है कि लाइक रियली मतलब जो बच्चे होते हैं जब डिस्कशन के थ्रू या फिर पर्सनल मेंटोरिंग एंड गाइडेंस के थ्रू पढ़ते हैं तो उसमें उनको कितना ड्यूरेशन लगता है, और जब उन लोगों को पर्सनल मेंटोरिंग और गाइडेंस के थ्रू उनका जब डिस्कशन करवाया गया, देन हाउ मच टाइम दे वर एबल टू सेव लाइक विद दैट पर्टिकुलर अप्रोच। सो उसके बारे में इस स्लाइड में डिस्कशन किया गया है। जैसे कि लाइक हमारे जो साइंस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अगर कोई बच्चा है जो कि क्लास करता है, आने के बाद खुद पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं हर एक जो चैप्टर होते हैं उसको 10 to 12 आवर अप्रोक्सीमेटली लगते हैं। ये एक अप्रोक्सीमेट स्टैटिस्टिक है जहां पे बच्चों को अप्रोक्सीमेटली ईच एंड एवरी चैप्टर जो है 10 to 12 या 13 आवर्स लगते हैं, बिकॉज फ्यू न्यूमेरिकल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन फिजिक्स, एंड फॉर केमिस्ट्री आल्सो जो है 130 आवर्स के अप्रोक्सीमेटली लगते हैं फॉर सेल्फ स्टडी, क्योंकि हम डेली बेसिस में पढ़ते हैं तो इसको हम जनरली कैलकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे कि सर ने प्रीवियस स्लाइड्स में कहा, मतलब मेंशन किया कि हम बच्चे के रूटीन को एनालाइज करते हैं, है ना। सो ये जो स्टैटिस्टिक है उस रूटीन को एनालाइज करके बनाया गया है ना। तो जब बच्चों को विदाउट गाइडेंस, जो बच्चे थे विदाउट गाइडेंस जब उसको कंप्लीट कर रहे थे, जैसे कि फिजिक्स में स्पेशली उनका 168 आवर्स लगते थे, लेकिन जब उन्होंने डिस्कशन किया, क्योंकि जब हम डिस्कस करते हैं तो चीजें ये होती है कि लाइक कॉन्सेप्ट्स हम अच्छे से ग्रैप्स कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म तक लाइक उसको माइंड में रिटेन करके रख पाते हैं, और उसके साथ साथ जो चीजें होती है हम उसको जल्दी खत्म कर पाते हैं, बिकॉज इन सेल्फ स्टडी अगर हम कहीं पे स्टॉक हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है लाइक एक साथ फोकस करके लंबा ड्यूरेशन तक बैठना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। तो इस ये सब जो चीजें होती थी, है ना, तो उसमें जब फाइनली उन दोनों का डिफरेंशिएशन किया गया, डिफरेंस कैलकुलेट किया गया, तो एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट में बच्चा जो है, जैसे कि आप यहाँ पे थर्ड कॉलम में देख सकते हैं, आई वुड लाइक टू एनोटेट इट। सो बेसिकली यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, अगर लाइक बच्चा विद गाइडेंस कर रहा है तो एटलीस्ट उसका 30 से 40, हर एक सब्जेक्ट में 30 से 40 घंटे के आसपास उसका टाइम सेव हो रहा है। ठीक है, तो ये साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, जैसे कि कॉमर्स का अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके साथ साथ जो ऑप्शनल्स होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस भी होते हैं, आईटी भी होते हैं, है ना, तो बेसिकली वो अलग ऑप्शनल्स भी होते हैं, लेकिन ये जो कोर होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लाइक हमने यहाँ पे आप चीजों को रखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइक पर्सनल मेंटोरिंग एंड गाइडेंस, हाउ इट कैन हेल्प द स्टूडेंट्स in like improving their performance in their examination, in their self study. Okay, so the next slide that tells us about ओके, सो एनोटेट को हम बंद कर देंगे। जहाँ पे कि जैसे मैंने साइंस और लाइक कॉमर्स का किया, यहाँ पे आर्ट्स का ऐसे ही एक ब्रीफ जो है लाइक समराइजेशन किया गया है कि अगर बच्चा विदाउट पढ़ते हैं, क्योंकि आर्ट्स में काफी सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो थियोरेटिकल होते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि हिस्ट्री हो गया, तो वहां पे जब वो खुद से पढ़ते हैं तो जैसे कि कुछ याद, आप बचपन में भी जीके पढ़ा करते थे, जब हम खुद पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम बाय डिफॉल्ट रट्टा मार लेते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है ना। हम बोलते तो हैं कि हाँ चलो समझ के पढ़ना चाहिए, मतलब टीचर्स भी हमें बचपन से यही सिखाते हैं कि इसको रटो मत, इसको समझ के पढ़ो, कोई भी हो, मतलब मे बी वो साइंस का सब्जेक्ट हो, कॉमर्स का सब्जेक्ट हो, या फिर आपकी आर्ट्स के सब्जेक्ट हो। तो बेसिकली टीचर्स हमको बोलते तो हैं और हमें भी लगता है कि हम फॉलो कर रहे हैं, कि हम नहीं, हम बेसिकली जो है समझ के पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट हम उसको रट्टा मारने चले जाते हैं, जिसकी वजह से कि कोई भी कॉन्सेप्ट हम जब पढ़ते हैं, इनिशियल
1 वीक और लाइक कुछ दिनों तक वो याद तो रहते हैं, लेकिन लंबा समय तक वो याद नहीं रहते। जैसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं, द कॉन्सेप्ट गेट ब्लर विद इन आवर माइंड, है ना? कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हमने लाइक थोड़ा सा कुछ कुछ याद नहीं आती है, और उसके साथ रिवीजन भी प्रॉपरली नहीं हो पाती है। जैसे कि सर ने मेंशन किया, रिवीजन क्यों नहीं हो पाती है? बिकॉज द स्टूडेंट्स डू नॉट गेट दैट मच ऑफ टाइम टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, लाइक बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका इस रीजन के वजह से फाइनल जो रिजल्ट होता है, वहां पे होता ये है कि बच्चे कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं। सो ये स्टैटिस्टिक से हम देख सकते हैं कि लाइक हाउ वी कैन सेव आवर टाइम, और ये टाइम को हम हमारे सेकेंड टाइम रिवीजन में यूटिलाइज कर सकते हैं। बिकॉज ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे पहले एटलीस्ट मिनिमम हमारा जो 3 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए। जब हम कोई चीज को 3 बार पढ़ते हैं, तो वो हमारे माइंड में लाइक जो है वो रिटेन होके रहता है, हम उसमें कॉन्फिडेंट होके अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये थी लाइक जो है लाइक बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल मेंटोरिंग एंड गाइडेंस। सर, आर यू देयर? Yes, yes. Am I audible, ma'am, now? या, नाउ यू आर। Thank you. Some technical glitch happened actually. Must tell you, this is for arts. And what I want to mention here is that what we have designed for all of you. The focus here is that we already have taken the responsibility of many students, as I mentioned, and I showed you your batchmates from any stream you say, science, say, arts, commerce, any stream. So what we do here is that we ensure that the self-study is done through respective teachers. लेकिन what is the uniqueness? Uniqueness is that आपके convenient time पे, किसी को रात के 11 बजे, किसी को रात को 10 बजे, किसी को 9 बजे, किसी को आधे घंटे के लिए, किसी को 1 घंटे के लिए, आप जिस टाइम पे बोलोगे आपका पर्सनल लिंक रहेगा, आपके लिए वो सब किया जाए। पहला। दूसरा जो मैंने बताया मेंटरिंग, जो मैंने आपको दिखाया था, जब आपका सिस्टमेटिकली शेड्यूल बन रहा रहता है और कोई आपके लिए है, अगर बिगड़ेगा, क्योंकि जब आप पहली बार आपका सेल्फ स्टडी शेड्यूल बनाएगा तो वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। यू कैन नॉट बी 100% परफेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन अगर कोई हो तो वो सुधारने के लिए तो दैट पर्सन विल टेक द चार्ज कि कैसे इसको सुधारना है। आज आपने ज्यादा टाइम सो गए, अब क्या किया जा सकता है? अब नींद थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि ठंड का टाइम आ गया, राइट? लेकिन हाउ यू मैनेज दैट? तो जैसे एल्डर ब्रदर सिस्टर आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दे टेक द सेल्फ स्टडी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे का शेड्यूल कैसे सिस्टमेटिक हो, वो इसका कंट्रोल ले। नेक्स्ट चीज हो गया जो मैंने आपको बताया, माइंड मैप। अगर आपको बाकी कुछ भी ना मिले ना, एक चीज अगर जरूर आपको मिल जाए, वो है माइंड मैप, देन आप बहुत इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका रिवीजन में ही सारी चीजें बचे हैं, राइट? एग्जाम से पहले 3 दिन आप कैसे बिता रहे हो उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है सारा साल का मेहनत। आई होप ये एवरीवन इज लेवल। आपका जब फरवरी में एग्जाम होगा, मार्च में एग्जाम होगा, उसमें हर एग्जाम से पहले के 3 दिन, these are the most important 3 days, साल भर की मेहनत का आपको वहां पे। तो मैंने आपको जो माइंड मैप दिखाया, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के माइंड मैप हमने बना के रखे। आपको कुछ नहीं करना है, खाली उसको यूज करना है। ओके, शिक्षा मैडम आप एक काम कीजिए, यहाँ पे ग्रुप में वो हमारा ऐप का लिंक डाउनलोड कर दे दीजिए। आपको खाली ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, और अभी हमने स्टडी मटेरियल नाम का एक सेक्शन है, वहां पे अगर आप जाएंगे तो सारे माइंड मैप, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सारे वहां पे दिए। और आज हमने, है ना, लास्ट टाइम के लिए उसको कोई भी डाउनलोड करके देख सकता है। कल से वो हट जाएगा, है ना? कल से जिन लोगों का हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उन्हीं को ही वो दिखेगा। बाकी क्योंकि हम उसके लिए एक बैच बना रहे हैं और वहां पे ऐड करेंगे। कल तक एनीवन कैन सी, यू कैन डाउनलोड, यू कैन सेव, यू कैन कीप इट विथ यू। मैंने बताया था एनिमेशन, जब आप सेल्फ स्टडी में उसको, क्योंकि आप 8-10 घंटा पढ़ने वाले हो, राइट? 2-3 स्ट्रेच में, मैं भी 2-3 दिन में आप उसको पढ़ने वाले हो, या फिर मैं अपने शेड्यूल बनाया होगा। जो एनिमेशन है, जिससे कि आपका विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि आप यू सी दिस, है ना, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, जब भी आप कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन देखते हो, एनिमेशन का मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन, तो आपका बहुत टाइम सेव होता है, क्योंकि आप उसको विजुअलाइज कर पाते हो, यू कैन कोरिलेट, राइट? तो वो चीजें एनिमेशन यू विल बी प्रोवाइडेड
Thank you, Shiksha madam. Shiksha madam has already mentioned in the chat. Okay, you can download the app. We have given our website link also. We have given our app link also. Okay. So those who are interested, those who feel that, sir, I feel that my responsibility to be taken and हमको help किया जाना चाहिए. Those who feel, then they can just do one thing. मैं चैट को फिर पर्सनल कर देता हूं क्योंकि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगा, हर किसी का इंफॉर्मेशन हर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ऑलरेडी वो पर्सनल है. अगर आपको लगता है कि सर आई फील कि अगर मैं क्लासमेट के साथ मेरा सेल्फ स्टडी का डेली का ट्रैकिंग कराता हूं मेंटरिंग के थ्रू, गाइड सर आपकी वॉइस सर क्लियर नहीं आ रही है. Okay, students. So as sir is facing a bit like technical challenges from his end, so I would like to show you something like how you can track your like as sir ने कहा था कि जब हम रिवीजन करते हैं तो दिक्कत क्या होती है कि हम बार बार जो उसी चैप्टर जो चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं रिपीट करते जाते हैं, जिसके वजह से जो लास्ट में जो चैप्टर्स रहते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, उनको हम टाइम नहीं दे पाते. तो मैं आपको एक शीट दिखाऊंगी, ठीक है, और वो मैं आप लोगों को लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी. कहाँ पे शेयर करूंगी? आपको हमारे जो जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जिसका आपको चैट में मैंने लिंक दिया हुआ है, जब आप उसको डाउनलोड करेंगे वहां पे आप अपना ईमेल आईडी शेयर कर देना, वो मैं आपको ईमेल आईडी में उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी. ठीक है, तो उसका मैं शीट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी. सो दिस इज द सीट, है ना. ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, फॉर एवरीवन. इट्स हियर लाइक इन दिस पर्टिकुलर लाइक आपका जो सिलेबस है, जैसे कि हमारे पास सिलेबस तो होता है लेकिन उसको टॉपिक वाइज नहीं डिवाइडेड होते हैं, टॉपिक्स सब टॉपिक्स वाइज डिवाइडेड नहीं होते. इसके वजह से होता क्या है कि हम जो है लाइक हमें ये नहीं होता है कि मतलब हम ये आइडिया नहीं आता है कि कौन से चैप्टर में हम के कितने पोर्शंस में हम कॉन्फिडेंट है और कितने में कॉन्फिडेंट नहीं है. ओके, सो दिस इज द शीट दैट आई विल शेयर विथ यू. ये आपको फिर अब अगर ये आप खुद से बनाएंगे तो इट विल टेक अराउंड लाइक आपकी 20-30 घंटा ये ले सकता है. ठीक है, तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है. सो थिंग ये है कि इट विल बी शेयर्ड बाय अस ओनली. तो यहाँ पे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो जैसे कि यहाँ पे मान के चलती है फिजिक्स का सब्जेक्ट, तो फिजिक्स में आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल यू हैव अराउंड 14 चैप्टर्स, है ना. 40 चैप्टर्स आर देयर इन फिजिक्स. तो ये सारे चैप्टर्स के नाम है और हर एक चैप्टर के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. द सब टॉपिक नेम आर आल्सो हियर इन दिस पर्टिकुलर लाइक जो है कॉलम में मेंशन्ड है. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आप कैसे ट्रैक करोगे कि आपकी कितने पोर्शन कवर हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं. तो यहाँ पे आपको टिक करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे. ऑब्वियसली ये शीट बनाने के लिए आपको टाइम लगेंगे, लेकिन इसका लाइक जो है इसको लाइक ट्रैक करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये जब आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, ये आपको एग्जाम तक रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते रहना है. कि सपोज जैसे कि आपका स्कूल में अभी हर किसी के स्कूल में अभी लाइक हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे स्कूल में अभी प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, है ना, या फिर कहीं कहीं पे प्री बोर्ड खत्म भी हो चुके होंगे. ठीक है, तो मतलब लाइक ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं स्कूल में सिलेबस ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो जो भी चैप्टर्स जो जो भी टॉपिक स्कूल में खत्म हो गए हैं, ट्यूशंस में खत्म हो गए हैं, वैसे ही आपको टिक करते जाना है. देन फिर होता है कि स्कूल और ट्यूशन में तो वैसे भी टाइम पे खत्म हो ही जाता है सिलेबस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेल्फ स्टडी. तो अभी यहाँ पे देखना है कि आपने सेल्फ स्टडी में क्या क्या पोर्शन खत्म किया है. लेकिन खत्म करने के बाद भी, क्योंकि क्या कभी कभी क्या होता है ना, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन वहां पे कुछ कुछ चीजें जो होती है हम उसमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रही होती है. तो वहां पे आपको जो जो आपने सेल्फ स्टडी एक बार कर लिया है यहाँ पर टिक कर लेना. लेकिन सेल्फ स्टडी करने के बाद आप अभी यहाँ पे क्योंकि आपके पास पूरा जो टॉपिक्स ऑफ टॉपिक्स है
पूरे जो आपके कॉन्सेप्ट्स के नाम है यहाँ पे मेंशन है। तो सपोज जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे, ये तो बेसिकली मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एंड फील्ड के चैप्टर जो है, यहाँ पे आपको ये सारे चैप्टर का आपने सारा कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है। सपोज मान के चलते हैं अभी आपको कूलम्स लॉ में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, तो यहाँ पे डाउट पे क्लिक कर देना है, सो दैट यू विल बी एबल टू नो कि अच्छा मुझे जब मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर पढ़ूंगा तो मुझे बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स में ध्यान तो देना है, लेकिन इसमें मुझे ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज मुझे मेरा यहाँ पे डाउट्स रह रहा है। ठीक है, तो everyone after downloading the application just like type your stream, like which stream you belong to, so that कि जैसे कि यहाँ पे मैंने साइंस का दिखाया है, वैसे कॉमर्स के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ऐसे मेंशन्ड है, उनके लिए भी एक ऐसा शीट डिजाइन किया गया है, और आर्ट स्ट्रीम के बच्चों के लिए भी डिजाइन किए गए। ठीक है, तो बस आपको डाउनलोड करने के बाद चैट में जब आपको एक वेलकम की मैसेज आएगी, वहां पे आपको मेंशन करना है कि साइंस स्ट्रीम एंड दिस इज माय ईमेल आईडी। ओके, सो आई विल शेयर दिस लिंक this sheet with everyone who are here in this webinar, क्योंकि this is a like हम बोल सकते हैं हमारी तरफ से आपको एक गिफ्ट है, जहाँ पे आप बेसिकली आपकी 15-20 या 25 आवर्स सेव कर सकते हैं आपकी जो ट्रैक करने के लिए सिलेबस के लिए, वो हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज जो है कैसे आपका ट्रैक, और ये शीट को आपको अप टू एग्जाम तक ट्रैक करते रहना है। और जिन लोगों के पास भी ये शीट आप लोगों को भेजा जाएगा, यहाँ पे आपके कॉलम्स ऐड होते होते जाएंगे, है ना, अप टू एग्जाम तक आपको वर्चुअली गाइड करने के लिए ये आपको जो है आपके यहाँ पे कॉलम्स ऐड होते होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे डाउट्स हैं, ठीक है, जब आपका ये डाउट्स खत्म हो गया, यहाँ पे आप इसको टिक को हटा देना है। अभी क्या होगा, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स होंगे यहाँ पे आपको एक और कॉलम देंगे, रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन में फिर क्या होगा, तो यहाँ पे रिवीजन में फिर करके ऐसे चेक बॉक्स ऐड कर देंगे, तो फिर आपका ये सेल्फ स्टडी तो खत्म हो गया, डाउट्स भी नहीं है, अभी आपने रिवीजन किया कि नहीं, उसके लिए फिर आपको एक कॉलम मिल जाएगी। ठीक है, तो लाइक वाइज हमारे जो मेंटोर्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, दे विल बी एबल टू गाइड यू कि और आपका कितना चैप्टर बाकी रह रहा है, कितना पोर्शंस बाकी है, और हाउ यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। और जैसे कि मैंने कहा था, एग्जाम से पहले 3 बार रिवीजन इज मस्ट, है ना। तो बेसिकली जो है यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे रिवीजन का टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो जो है आपको अकॉर्डिंगली ट्रैक कर पाएंगे कि कितने बार रिवीजन हुआ, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू ट्रैक एंड आपकी रिवीजन प्रॉपरली हो पाएगी। ठीक है, सो आई होप यू ऑल हैव डाउनलोडेड द क्लावीमेट क्लासेस एप्लीकेशन। अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, करने के बाद इमीडिएटली वहां पे टाइप कर दीजिएगा आपका स्ट्रीम और आपका ईमेल आईडी। ओके, so this was all from my end. Sir, would you like to mention anything to the student? मेरा ख्याल ये एक सजेशन है कि जो लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे मैडम ने बोला, आपको आपका ओके ओके लेट मी शेयर। आई होप मेरा वॉइस आ रहा है शिक्षा मैडम? यस सर। Yes. ओके 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 ग्रेट। सो लेट मी शेयर द फुल स्क्रीन, है ना, शेयर द फुल स्क्रीन, है ना। So this is about, as I mentioned, is a strategy. तो हम क्या चाहते हैं कि आपको आज ये एनालाइज करना है कि क्या रियली ये सब चीजें जो हमने किया है ना, इज इट वर्थ और नॉट। अगर वर्थ है तो आपको तो वैसे सिलेबस का वो हम भेज ही दे रहे हैं आज, है ना, उसको आप एनालाइज कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल रहेगा, सेल्फ स्टडी को हम हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं, है ना, वो आपको डिसाइड करना है कि वो हाफ एन आवर, मैं तो नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा करो, और वो हाफ एन आवर भी ऑन प्रोडक्टिव टाइम, जिस टाइम तुम पढ़ाई नहीं करते हो, शायद बोर लगता है, कोई मजे करते थे, वैसे कोई आधा घंटा या 1 घंटे का स्लॉट निकालो। अगर आप ऑलरेडी, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑलरेडी 80% प्लस स्कोर कर रहे हैं तो हाफ एन आवर इज एनफ, ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपका फील होता है कि 80% से स्कोर बिलो है, कुछ भी हो, 60, 70, 50 जो भी हो, देन आपको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हाथों हाथ वहां पे ज्यादा टाइम देके उसको क्लियर करवाना है आपके कन्वीनियंट टाइम, है ना। दिस विल बी माय एडवाइस। तो आई होप एवरीवन हैज इंस्टॉल्ड द ऐप। एंड और एक रिक्वेस्ट है, शायद वो कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए बेहतर रहेगा, किसी को ऐप इंस्टॉल करने में दिक्कत भी आ सकता है, तो आप जो लोग चाहते हो कि कल से आपको इसमें गाइड किया जाए, है ना, आप आपका नाम एंड कौन से फोन नंबर पे आपके पेरेंट्स को कांटेक्ट किया जाए, बिकॉज पहले पेरेंट्स का परमिशन होना जरूरी है ना, बिकॉज जब तक पेरेंट्स का परमिशन नहीं मिलता तब तक हम इसको नहीं कर सकते। इवन आपने मार्क किया आज मैक्सिमम लोगों को पहले हमने पेरेंट्स को कांटेक्ट किया, बिकॉज दे हैव द अथॉरिटी,
आप उन्होंने ही आपको सब किया है, राइट? तो आपका नाम, पेरेंट्स का नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, हमको आपका कॉन्टैक्ट नंबर अभी नहीं चाहिए, पेरेंट्स का परमिशन होगा तो वो खुद ही आपका कॉन्टैक्ट नंबर हमको दे देंगे, कोई दिक्कत है ना? वो आप दे दीजिए चार्ट में, ताकि हम उनको कल सुबह कॉन्टैक्ट करके उनका परमिशन लेके वी कैन स्टार्ट इट, है ना? नेक्स्ट थिंग, मैं भी अपने साइड से एक नंबर देता हूं, जिनको आपका कोई क्वेरी होता है, पेरेंट्स ने कुछ पूछा है ना, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन है ना, टेक द हेल्प, है ना? So this is the number, है ना? Name is Mr. Santosh Paswan, है ना? ये मेरे टीम मेंबर, आज बहुत लोगों को उन्होंने कांटेक्ट किया भी होगा, है ना? Okay, so let me share with everyone. Yes, I have given my team members number, है ना? आप अपने साइड से अगर कांटेक्ट करना चाहते हो, मतलब उनके कोई मतलब पेरेंट्स का कोई क्वेरी आता है या फिर बच्चे, अगर कोई पेरेंट अवेलेबल है मेरे साथ यहाँ पे और वो बच्चे का कोई क्वेरी आता है, उसको क्लियर करना है, सो इट विल बी बेटर इफ यू कांटेक्ट हिम, है ना? एंड फॉर स्पेशली अगर, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं मैं मुझसे या शिक्षा मैडम से डायरेक्ट बात करना है, तो मैं आपको एक और नंबर देता हूँ, है ना? है ना, कि हम इतना ज्यादा तो अवेलेबल नहीं रहते, पर फिर भी ठीक है। हमारा नंबर देते हैं, इन दोनों में से हम कोई भी उठाएंगे इसको या फिर कॉल बैक करेंगे, कभी कभी हम उठा नहीं पाते फोन, तो कॉल बैक करेंगे। ओके, क्योंकि हम दोनों इन्वॉल्व थे रिसर्च में, आपको अगर कुछ चीजें जानना है देन यू कैन टेक आवर हेल्प, है ना? तो मेरा और शिक्षा मैडम का कंबाइंड जो नंबर है, जो IVR पे भी है, हमने अपना नंबर दिया हुआ है ना? वो नंबर भी आपको दे दिया है, एंड मेरे जो मेंबर जो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के डिस्कशन रिलेटेड सारे जो आपको समझा सकते हैं, मैंने उनका भी नंबर दे दिया है ना? नाउ अगर आपका कोई क्वेरी है, इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन क्लियर द क्वेरी, है ना? अदरवाइज वी कैन क्लोज द मीटिंग एज ऑफ नाउ एंड विल ज्वाइन टुमारो, है ना? अगर आप चाहते हैं तो हम कल से ही आपके लिए हेल्प करना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड वो ऐप जरूर डाउनलोड करो, ताकि वहां पे आप लोग जब कल हम स्टार्ट कराएंगे, है ना, तो आपको वो इनफैक्ट अभी से करोगे तो माइंड मैप देख सकते हो, एनिमेशन देख सकते हो, सारी चीजें वहां पे है ना? हाउ इट इज यूजफुल, क्योंकि आपको भी फील होना चाहिए कि यू हैव डन समथिंग वर्थ। यस, इफ समवन वाज आस्किंग समथिंग, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। आप चैट में भी आपका क्वेरी लिख सकते हैं। Okay, so I hope there are no more queries. Great, great. So if there are no more queries, then we can maybe close this session here. And thank you for joining. My apologies that we had a number of technical glitches. Anyway, so thank you for all joining. Let's close it here. And if you give us the responsibility, then we shall start meeting every day, with my mentors, with my subject wise experts from tomorrow onwards. Okay, thank you. So I'm closing the meeting with the hope that we'll meet tomorrow to help you in your self study. Okay.